It happened now. सेवेंथ सम वी आर डूइंग फुल फ्लेजेड सम है बैलेंस शीट दिया है ना मतलब फुल फ्लेजेड हो जाते हैं ओके वो लोग बोलेंगे नहीं कैश और गुडविल बनाने को बोलेंगे नहीं दे विल आस्क यू टू मेक रिवाल अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बट कैश एंड गुडविल बनाने का एवरी सम यू मेक इट एज अ वर्किंग नोट बट यू मेक इट draw the columns full fledged sum. But then there was one sum where we had to only make partners capital account and balance sheet. That was in a full-fledged. No. There was no sum where you had to make only capital and balance sheet. Whereas only capital, not balance sheet. Balance sheet पूछा है तो full fledged ही है. Then I ask you only capital. That is a point. Only capital is possible. But balance sheet आ गया मतलब full fledged. Sum number 7 we are doing. E, F and G are the partners. After death, balance sheet is after death. What will be the date of balance sheet? He died on 31st of March. What will be your date of balance sheet? I think 1st April 2010. तो बैंक है गुडविल है ड्रॉ कर लो फटाफट रेनेसां स्मिथ प्रॉपर्टीज विल बी आउट ओके लास्ट कैश और बैंक दोनों है Sir, balance in cash would be 5,000, right? cash/bank हर एक एंट्री में भी you can mention cash/bank or you can write to balance PD cash 500 bank 4,000. Okay, earlier also we have done this cash/bank. Let's begin. First step is your opening balance, okay, in cash. Then in goodwill, goodwill भी दिख रहा है आपको? Balance sheet में goodwill दिया हुआ है. As I told you, balance sheet goodwill sums are very important for retirement and death. Retirement death में balance sheet goodwill बराबर से करना है. कल भी टेस्ट में आएगा. Balance sheet goodwill sums. Okay. 18,900 is opening balance of goodwill, opening balance of bank. Then go to capital, buy balance PD. E, F and G, it is 30, 20 and 20. Next step is what? What is your second step after balance? That is reserve fund. You got reserve fund, so distribute it to old partners in old ratio. What is your old ratio? 1:1:1. First line पे दिया हुआ equally है.
6,000 को you divide it as 2,000, 2,000, 2,000. Mega Goel, pay attention. Mega Goel, Yes, sir. pay attention. 2,000, 2,000, 2,000 each reserve fund. Third step is capital, but I think none of the partner is getting any capital. So you go to your fourth step, that is goodwill. Which case of goodwill do you have? Please check. Case 3. Case 3. Are you sure? All of you try to identify which case of goodwill you have. Come on. 3. Third case. How come third case? Because There is share is not given. Arya Not Gandhi को given. समझ रहा है? हाँ सर Case 3 बराबर है. So goodwill is to be valued at the average profits of last 5 years. मिला? शेयर वेयर का बात ही नहीं कर रहा है, वैल्यूड बोल दिया मतलब केस 3. लेकिन देयर इज अ कैच. केस 3 के साथ बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल है. तो कैन यू क्लब द एंट्रीज और यू नीड टू राइट सेपरेट एंट्रीज? क्लब इट. तो पहले लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. मेक अ वर्किंग नोट. कैलकुलेट गुडविल. खुद से करना है कैलकुलेट. कम ऑन, डू इट ऑन योर ओन. Simple average है. Goodwill is to be valued at average of last 5 years per. Simple 10,500 average of last 5 years. 10,500. That's the answer. Gargi. yes sir Check others. Is this 52,500? yes sir 10,500. That's your average. So I think my total goodwill is equal to the average profit. 10,500. Now the catch is already in the balance sheet there was some goodwill, right? 18,900. And 18,900 को we have to make now 10,500. So बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना. तो क्या होना चाहिए एंट्री? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर की ओल्ड पार्टनर टू गुडविल? Old partner Old to partner to goodwill. ओल्ड पार्टनर टू गुडविल. याद आया ये? क्या कर रहे हैं हम लोग? We are actually writing off old goodwill of 18,900, उसको जीरो कर रहे हैं और 10,500 से रेस कर. बराबर है? So दोनों एंट्री साथ में मर्ज की जाती है because it is third case और fourth case में always pass the combined entry. So कम करना है तो old partner to goodwill और कितने से कम कर? Would you reduce it by 18,900 or would you reduce it by 10,500? How much would you reduce it? 8,400. 8,400. 18,900 का अभी अपने को करना है 10,500. You have to decrease it by 8,400. Is this clear? तो ये थर्ड और फोर्थ केस में ही करना है कंबाइंड एंट्री. ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ और न्यू गुडविल रेज इनको कंबाइन कर दिया. एंट्री एक ही एंट्री पास करनी है. गुडविल को कम करना है तो ओल्ड पार्टनर टू गुडविल. तो ओल्ड पार्टनर में आएगा टू गुडविल. Which ratio? They will write it off or raise it in 1:1:1 so 1:1. 6,300 each. 1:1. How much? 6,300 No. 2,800. 2,800. 28. देखो ये Sorry, सिली मिस्टेक कर combined दिया ना, entry. सब कल्याण हो जाए. 18,900 से कम नहीं करना है. 18,900 से कम करके 10,800 से बढ़ाना है. नेट क्या है? 10,500 से बढ़ाना है. So net 8,400 से कम. You have to reduce it by 8,400. yes sir, sorry तो कैपिटल में टू गुडविल और गुडविल में बाय ओल्ड पार्टनर कैपिटल, बाय ई, बाय एफ,
बाई जी, ये हमने एडमिशन में भी किया था, रिटायरमेंट में भी किया था, डेथ में भी करने हैं, सेम चीज कर रहे हैं. थर्ड टाइम वी आर डूइंग दिस. Okay, 2800, 2800, 2800. Is this clear? Got it? All of you clear? अभी ऑटोमेटिकली आपका गुडविल कितना बन जाएगा? How much goodwill is left out? 10,500. 10,500. Okay, that will go in the balance sheet. 10,500. All right. That's about goodwill. So let's move to the next step now. After goodwill, that's reval. I think reval is given just below the balance sheet in the question. Only a couple of points, 3 points for reval. First one is freehold property. Freehold property was 40,000. उसका बनाने का है 58. तो प्लस रिवैल 18,000 से बढ़ गया और ये जाएगा बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 18,000. Then investments be appreciated by 1,200. So investments were 5,000. 5,000 का हो गया I think अभी 6,200. तो ये भी बढ़ गया तो that is also gain by investments. And then you got stock to be valued at 9,500. Book value of stock was 10,000. उसका हो गया है 9,500. हो जाएगा to reval, that's your loss. And I think reval part is done. You can calculate your profit or loss on reval. How much is your profit or loss on reval? Profit is of 19,000. The total is 19,200. And the amount which each partner will get is 6233.33. 6,233. Yes. सर उधर 2 स्टॉक आएगा ना? Two stock. Two stock. Profit is I think 18,700 divided by 3 is I think 6,233. Perfect. 6,233. Absolutely right. 6,233 and 6,234. एक को ₹1 ज्यादा कर देंगे. कोई भी एक पार्टनर को ₹1 you give more just to round it off. तो रिवाल में 2 कैपिटल, कैपिटल में बाय रिवाल 6,233, 6,233, 6,234. Is the sum over or anything left out in debt? Profit. Share of profit, P&L suspense. So how much is the share of profit based on? See, read. Point number 2 में दिया हुआ. Read point number 2. That his share of profit till the date of death shall be calculated on the basis of the average profits of 3 preceding years. How many years का average it is based on? The share of profit? 5-year average or 3-year average? 3-year average. 3 साल के average पे based है. So another working note number 2. Share of profit. Share of profit. These are yours and these are profits. Which 3 years should you take? 5, 6, 7 or 7, 8, 7, 8, 9. 7, 8. 8, 9. The recent 3 years. 7, 8, 9. Okay. 7, 8, 9. The profits are 9, 8, 10. तो पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं? पिछले 3 साल में हमने 9,000, 8,000 और 10,000 कमाए थे. तो ये साल हम लोग अप्रोक्सीमेटली इनका एवरेज कमाए. What are your average profits? 27,000 divided by 3. 9. That's 9,000, right? 3,000 for you. Into 3 by 12. Very wrong. 9,000 into 3 by 12. Harsh just went 1,000 students down.
शेयर ऑफ प्रॉफिट ढूंढना है। किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ढूंढना है? जो डेड पार्टनर है उसका। पूरा का पूरा उठा के नहीं दे सकते अपने को। कौन गया? ई गया। तो इज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करूं? 9000 का 1/3 बराबर है And 3/12. and 3/12. Why 3/12? See, what was the date of balance sheet? What was the date of balance sheet? Check in the problem, all of you. Balance sheet का date December 2000. 31st December था। December ending का सम था। और कभी गया? When did E die? He died on 31st March. So how many 31st months March. later? 3 months. January, February, March. 3 months later. Can you all see that? Yash Vora. 3 months later he died, right? तो कितना होता है 3 months का into 3/12? 750. 750. 750. What will be the journal entry for this? By P&L suspense account in P&L partner suspense capital. to dead partner capital. तो dead partner capital में क्या लिखना है? By P&L suspense. इधर आ जाएगा by P&L suspense. डेड पार्टनर कौन है? ई है। पहला ही पार्टनर Cost है. कॉस्ट ही गया है। ये कितना आएगा यहाँ पे? 750. ये उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, व्हाट विल बी द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस P&L सस्पेंस का? Asset. एसेट में P&L सस्पेंस। अब चेक कर लो, डू यू हैव एनी सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? कुछ दिया है सबने? कुछ होता तो वो भी यहाँ पे ऐड या लेस कर देना है। P&L सस्पेंस हमने किया था ना लास्ट। P&L सस्पेंस में आई थिंक और कुछ है ही नहीं, सैलरी टू पार्टनर वगैरह कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है सब में। ये 750 रुपीज ही रहेगा। एनीथिंग एल्स लेफ्ट आउट इन द सम? ऑल ऑफ यू रीड दैट पॉइंट नंबर 1 एंड टेल मी, इज देयर एनीथिंग डिफरेंट गिवन ओवर देयर? पॉइंट नंबर 1 पढ़ो सब लोग। कुछ अलग दिया है पॉइंट नंबर 1 में? No, it's the same. नथिंग डिफरेंट, राइट? जो हम लोग नॉर्मल केस में करते हैं ना वही दिया है डीड में। उसको क्या क्या मिलना चाहिए? हिज कैपिटल, देन हिज विड्रॉवल्स, ओके वो सब। तो ड्रॉइंग्स तो कुछ है ही नहीं, होता तो रिकॉर्ड कर लेते। बराबर है? एनीथिंग एल्स लेफ्ट आउट इन द प्रॉब्लम? फिनिश्ड? करो शट डाउन डेड पार्टनर फर्स्ट। वेयर विल यू ट्रांसफर डेड पार्टनर का पैसा? So total is 38,983 38,983, is that right? and balance is 36,183. किधर जाएगा ये बैलेंस? कुछ नहीं दिया है तो डेथ। Executors loan account. Who is executors loan account? Okay. Who is executors loan account? 36,183 rupees. ये executor किधर दिखेगा? When you where you will find this? Executor is executors loan. That will go in the balance sheet 36,183. Either you can write executor or legal heir. Okay. लीगल एयर भी लिख सकते हो या एग्जीक्यूटर भी लिख सकते हो, कुछ नहीं दिया है तो बोथ आर फाइन। एंड रिमेनिंग पार्टनर को बैलेंस किया जाए। कितना आ रहा है बैलेंस? 28,233, 28,233 और ये भी 28,234, 25,433 for F. 25,433 and 25,434 बराबर है। ये जाएंगे बैलेंस शीट में। क्या हो गया? This is 25,433, 25,434 and what is the total? 58,866. 867, right? 50,867. Get the balance at bank. ये सेम ही आएगा जो पहले था। ओके, दोनों का सेम है। 500 of cash, no change, so you can write it as it is. बैंक 4,500। कोई एंट्री होती तो कैश बैंक मर्ज कर देते, बट कोई एंट्री हुआ ही नहीं।
इधर कैश लिख सकते हो 500, बैंक लिख सकते हो 4500. As it is, you can transfer, no change. Will goodwill appear in the balance sheet? What do you all think? Yes. Yes. Why goodwill will appear? Because it was case 3. 3. रिटायरमेंट और डेथ केस 1 और केस 3 गुडविल दिखता ही है बैलेंस शीट में. कितना दिखेगा बैलेंस शीट गुडविल? आई थिंक इट विल बी 10,500. अभी गुडविल का वैल्यू हो गया है 10,500. बराबर है. गुडविल भी हो गया. रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कैश लिखा, बैंक लिखा, डेटर्स बाकी है तो डेटर्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ बीच में. डेटर्स आर नो चेंज 10,000 एज इट इज. स्टॉक लिखा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखा, गुडविल लिखा, इन्वेस्टमेंट्स भी लिखा. क्रेडिटर्स बाकी है तो क्रेडिटर्स लिख लो. क्रेडिटर्स आर 12,900. रिजर्व फंड लिखा, कैपिटल लिखा, इट शुड टैली. सर एसेट्स में डेटर्स नहीं लिखा है. लिखा लिखा ही. करो टोटल. 99,950. 99950. Is that right? 99950. Okay. So when nothing mentioned about cash or bank, we have to use executor loan account. Yeah, in death. डेथ में पैसा ताबड़तोड़ नहीं देने का, रिटायरमेंट में दे देने का. डेथ में एग्जीक्यूटर या फिर लीगल एयर्स. ट्रांसफर द मनी टू एग्जीक्यूटर्स लोन और लीगल एयर्स. Sir, can we combine the cash and the bank amount? कर सकते हैं बट ये सब में जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कोई चेंज नहीं था. कुछ एंट्री हुआ होता तो हम क्लब कर दे. एंट्री हुआ ही नहीं है तो राइट इट एज कैश सेपरेट बैंक. Sir, goodwill समझाओगे एक बार? गुडविल, नया गुडविल का वैल्यू मिला 10,500 और बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल था. ओल्ड गुडविल क्या होता है? राइट ऑफ. कौन राइट ऑफ करता है उसको? Old partner. ओल्ड पार्टनर. उसकी एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर टू Buy goodwill में buy capital में to goodwill. एंट्री मतलब ओल्ड पार्टनर टू गुडविल होता है ना. तो ओल्ड पार्टनर में टू गुडविल, गुडविल में बाय ओल्ड पार्टनर. तो 18,900 से आपको राइट ऑफ करना है ना ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, और 10,500 से बढ़ाना है. उसकी एंट्री क्या है? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. वो भी ओल्ड पार्टनर ही कर रहे हैं यहाँ. तो हम लोग क्या करते हैं? थर्ड केस है ना, एडमिशन में भी करते थे, रिटायरमेंट में भी मर्ज करते. सो 18,900 से कम किया और 10,500 से बढ़ा दिया. तो नेट क्या हुआ? 8,400 से कम हो गया. तो ओल्ड पार्टनर टू गुडविल 8,400. यही अगर बढ़ाना होता, समझो बैलेंस शीट में 10,500 होता और नीचे 18,900, तो एंट्री क्या होती? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर 8,400. बढ़ाना है तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, कम करना है तो ओल्ड पार्टनर टू गुडविल. थर्ड केस है ना, तो खाली दोनों गुडविल को कंपेयर कर, बैलेंस शीट गुडविल और न्यू गुडविल, पास द नेट. Now, sum number 12. 12th is also a full-fledged sum. Sum number 12. Draw the columns. 84, page number 84, sum number 12. बताओ. Take sum number 12, all of you. ट्वेल्थ सम में थर्ड पॉइंट पढ़ के खाली मुझे बताओ. ट्वेल्थ सम का थर्ड पॉइंट पढ़ो. Which case of goodwill do you have? Case 4. All of you check. 12th sum third point.
third case, but we just combine. Third case. Third case. or fourth? Case 4. Third case 4. If in Case case four. 3, we Goodwill need account to नहीं show बना goodwill है। account. We need to show goodwill account in case 3. Exactly. Third case में तो goodwill account दिखाना ही पड़ेगा. How can you do third case without it? So it is not case 3. It is case 4. But written off तो दिया नहीं है. Case 4 कैसे हुआ? Directly partner to partner. लेकिन रिटर्न ऑफ का बात ही नहीं किया है कहीं पे, तो केस 4 कैसे हुआ? No no goodwill goodwill account नो to be गुडविल shown. अकाउंट शुड बी शोन. याद आ रहा है कुछ? नो गुडविल अकाउंट शुड बी शोन. तो डायरेक्टली पार्टनर टू पार्टनर में एडजस्ट करना है केस 4. नो गुडविल अकाउंट शुड बी शोन. हाँ, सॉरी, व्हाट? No goodwill account should be shown. So that way it is case 4. But goodwill account दिखाने का नहीं है. Goodwill account open ही नहीं करना है. बराबर है? तो no goodwill account should be shown directly partner to partner. याद है रिटायरमेंट में भी किया था, डेथ में भी एक बार किया था, तो आ सकता है ये. No goodwill account should be opened या no goodwill account should be shown. Remember this. Okay. डायरेक्ट एंट्री मारना है पार्टनर टू पार्टनर. केस 4 है गुडविल का, बट डायरेक्ट एंट्री विदाउट एनी गुडविल अकाउंट. गुडविल अकाउंट ड्रॉ नहीं किया तो चलेगा ये सब. नो नीड टू ड्रॉ एनी गुडविल अकाउंट. खाली ही रहने वाला. गुडविल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. So even in your test, if we get a case like this, it's okay if you don't have the goodwill account. Sorry? Even in your exam, if we get a case like this, it's okay if you don't have a goodwill account. हाँ, खाली ही रहने वाला है. व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रॉइंग गुडविल? नो यूज ना. It will be empty only. No need to draw goodwill. गुडविल अकाउंट ही ओपन नहीं करना है. गुडविल बनाने की कोई जरूरत नहीं. खाली जिधर बोला है नो गुडविल अकाउंट भी ओपन. नो गुडविल अकाउंट भी. They are doing some number 12. Arya Gandhi, what happened at the test? कितना कम आया? हेलो. हाँ आर्या, बोलो. कितना कम आया टेस्ट में? पढ़ाई नहीं किया था? आर्या गांधी, नहीं सर. पढ़ाई नहीं किया था कि लिख नहीं पाए? क्या हो गया? सर दोनों. दोनों. क्यों? कभी करना है पढ़ाई? Today you come for offline practice, okay? ओके. Without fail. 7:30. Mahek, Anuj, Nishant, Vanessa, Krish. Bye bye. You take care. आगला बता समझावा चमूता वाला. नहीं, ये आई थिंक लास्ट ईयर के बाद पार्ट. Sum number 12. Partners are Rakesh, Mahesh and Mukesh. Rakesh, Mahesh and Mukesh.
हाँ बोलो. What are the timings for tomorrow? Tomorrow's timing there'll be 2 slot. There is a offline होगा टेस्ट. एक स्लॉट होगा 2 to 3:30 और एक होगा 3:30 to 5. ओके, तो आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा 2 स्लॉट्स. आई वांट 40 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स इन ईच. तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से नाम दे देना. एक लॉप साइडेड मत कर देना, आधे आधे अपने आप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, वरना मैं उठा के डाल दूंगा. सर दूसरा बैच अपने कितने बजे होगा? 2 से 3:30, 2 to 3:30 and 3:30 to 5. सर मैं 2 to 3:30 आऊँ चलेगा? मैं डालूंगा ग्रुप में. ओके, कन्वीनियंस के हिसाब से अपना टाइम डाल देना, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना है. ऐसा सब लोग गर्दी करके एक बैच में मत आना, डिवाइड होके आना. 2 to 3:30 में आधा लोग आना और 3:30 to 5 में दूसरा आधा लोग. ओके, और आधा लोग आ सकता है तुम लोग. 2 to 3:30 का स्लॉट में सेकंड बैच में लेता ही हूँ ना. हाफ द पीपल अटेंड देयर, यू कैन कम इन 2 to 3:30. जो दूसरा बैच वाला स्टूडेंट है, पहला बैच वाला जो अभी मॉर्निंग अटेंड कर रहा है, कैन कम इन 3:30 to 5. You will send the PDF also. तुम दे सकती हो ना अभी 2 to 3:30. क्या है तुम? कॉलेज रहता है. हाँ, कॉलेज. कॉलेज अभी एक दिन मोबाइल पे रख दो उधर चालू. वीडियो ऑन रखने को बोलते हैं क्या? नहीं ना, कॉलेज अभी. सॉरी, कॉलेज में उस दिन लास्ट लेक्चर में टेस्ट है. वो मिठी भाई ना. एनएम. व्हाट टाइम? एनएम अरे मतलब मेरे क्लास में टेस्ट है. व्हाट टाइम? 3:45 तक होगा. हाँ, तो 3:45 तक ही हाँ टेस्ट. सर सेम सीसी रहता है. 3:30 मतलब वो 3:45 15 मिनट हो जाएगा. सर तो लेकिन थोड़ा आगे पीछे पहुंचेंगे तो चलेगा. पहुंचने का उधर आके लिखो 3:30 बजे पहुंच जाना शायद. ठीक है, तो होगा ऑफलाइन. 2 स्लॉट्स मैं ग्रुप में डालूंगा और जिसका नाम है वो वही स्लॉट में आएगा. ग्रुप में मैं लिस्ट डालूंगा, अपना नाम खाली डाल देना. बैच 1 6 के बैच. 2:30 2 o'clock को आने का है तो अपना नाम 2 o'clock में डालना. 3:30 को आने का है तो 3:30 में डालना. सब लोग एक जगह मत आना, नहीं तो जबरदस्ती फिर मैं उठा के डाल दूंगा दूसरे का. सर इट शुड बी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस कि जितने नाम ऊपर डाले वो लोग ऊपर मतलब वही बैच में है. फर्स्ट कम फर्स्ट सब बराबर है, बट कन्वीनियंस के हिसाब से देखना. किसी का क्लास वास क्लैश हो रहा है और तुम्हारा क्लास क्लैश नहीं हो रहा है तो तुमको एडजस्ट करना पड़े. दैट इज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा नहीं है. यू हैव टू लुक फ्रॉम एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू ना. सबका भी क्लास रहता है, कुछ क्लैश होता है, कॉलेज होता है, तो एडजस्ट करके डालने का. बी अंडरस्टैंडिंग. 12th sum. Rakesh, Mahesh and Mukesh were partners sharing profits and losses as 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. Okay? And compulsorily offline ही आना है, no online. Offline ही आके लिखना है. 8 पेपर पेन टेस्ट है, बराबर टाइमिंग के हिसाब से लिखना. आगे से हर एक टेस्ट ऑफलाइन ही होगा. Rakesh, Mahesh and Mukesh were partners sharing profits and losses as 3:2:1. Tell me the first step. बोलो क्या करेंगे? Balance amount. बैंक बैलेंस लिख दो. टू बैलेंस पीडी 14,000. पार्टनर्स कैपिटल में लिखो बाय बैलेंस पीडी. दिस इज 30 20 and 10. Okay. Then go to your capital. Sorry, reserve fund. Do you have any reserves or losses in the balance sheet? Check. No reserves or losses. बराबर है. Then you go to capital. कुछ capital है नहीं, so go to goodwill. Goodwill सबको समझा? Point number 3. कौन सा केस है? वापस पढ़ो सब लोग. वापस पढ़ो. Which case you have in point number 3?
Which case 1, 2, 3 or 4? Case 4. Case 4. Why 4? टोटल गुडविल दिया है मतलब केस 3 होता है. राइट ऑफ नहीं बोला है कहीं. राइट ऑफ बोला होता है तो केस 4 होता है. बट राइट ऑफ की जगह इधर बड़ा हिंट दिया है, नो गुडविल अकाउंट बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म. ये बड़ा सा हिंट है आपका, नो गुडविल अकाउंट बी शोन मतलब बिना गुडविल के करना है तो केस 3 हो ही नहीं सकता है. केस 3 में तो गुडविल दिखता है बैलेंस. केस 3 नहीं है, वो केस 4 है. राइट ऑफ करना है लेकिन बिना गुडविल यूज. पहले तो गुडविल कैलकुलेट करो. गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years. 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है नीचे. प्लीज कैलकुलेट दैट. 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है. years 1, 2, 3, 4 and 5. Profits are 6,000, 11,000, 7,000, 12,000 and 24,000. So Average is 24,000. total 1 minute. 12,000. total is 60. Average is 60,000 divided by 5. That's And 12. it's 2 times. So it And is goodwill is 2 24. times. 2 times. 2 years purchase matlab 2 times. So 2 into 12. That comes to 20. Absolutely right. 2 into 12, that comes to 24,000 rupees. Is this clear? So total goodwill is 24,000 rupees. Sorted. Got that? Now, total goodwill fourth केस में क्या एंट्रीज होता है? दो मुझे पहले एंट्रीज बता दो. What are the 2 entries in case 4? To Goodwill to All to partners. Mukesh partners. Capital. राकेश, महेश, मुकेश. बराबर है. गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो. टोटल गुडविल रेस करनी है. 24,000 को रेस करना है. ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1 है. आई थिंक आई गॉट 12, 8 and 4. इसको राइट ऑफ कौन करेगा? Who will write off this? Rakesh and Mahesh. राकेश एंड महेश. मुकेश तो मर गया. राकेश एंड महेश टू गुडविल. Which ratio do they write it off in? New ratio. What is the new ratio? 3:2. 3:2. 1 को हटा दो. तीसरा पार्टनर गया, 1 को हटाओ. 3:2 में डिवाइड करो. 24,000 कितना आता है? 5 डिवाइड बाय 5 into 9. 14,400 and 9,600 आ रहा है क्या? Is that right? 14,400 and 9,600. अब मुझे बताओ इसमें गुडविल यूज करना है कि नहीं करना है? केस 4 करना है लेकिन गुडविल यूज नहीं करना. तो गुडविल कट करो. इन दोनों एंट्री को क्लब करो तो बचेगा क्या? ये राकेश दिख रहा है. यहाँ पे 12,000 क्रेडिट है, यहाँ पे 14,400 डेबिट है. तो नेट डेबिट ऑफ 2,400. महेश का 8,000 क्रेडिट है, 9,600 डेबिट है. तो महेश का 1,600 डेबिट है नेट. और मुकेश में खाली क्रेडिट में है 4,000. तो टू मुकेश 4,000. So what is your combined entry for this? Without goodwill क्या होगा combined entry? Rakesh, Mahesh to Mukesh. Can you see that? Rakesh, Mahesh to Mukesh. What did I do? थर्ड और फोर्थ केस का एंट्री को मैंने कंबाइन किया. डेबिट क्रेडिट नलिफाई किया. जो भी डेबिट क्रेडिट कॉमन है उसको उड़ा दिया. सिंपल. ओल्ड गुडविल रेज्ड एंड देन रिटर्न. इज दिस क्लियर? All of you got this? बोलो मेरे को. एंट्री समझा कि नहीं गुडविल का? दिस इज द थर्ड टाइम आई थिंक वी आर डूइंग. फर्स्ट एंड सेकंड रिटायरमेंट में किया था, एक बार डेथ में भी किया था. समझा गुडविल कैसे करने का सबको? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल. 2 एंट्री करो और फिर मर्ज करो. तो जो डेबिट क्रेडिट में कॉमन आइटम है उसको नलिफाई करो. डेबिट में बचता है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में बचता है तो क्रेडिट में.
राकेश और महेश का डेबिट में बचता है ना, डेबिट में लिख, और मुकेश का क्रेडिट में बचता है 4 का, क्रेडिट में। अब इसको पोस्ट कैसे करोगे? राकेश महेश टू मुकेश, हाउ विल यू पोस्ट? In Rakesh, Mahesh, we'll write to Mukesh. पहले तो अलग करो, हाँ, स्प्लिट करके करना। राकेश टू मुकेश 2400 एंड महेश टू मुकेश 1600। So can't we write in the same? We can write but do it separately, सेम लाइन में लिख सकते। राकेश टू मुकेश 2400, राकेश टू मुकेश, राकेश में टू मुकेश 2400, और मुकेश में बाय राकेश 24, एंड देन महेश टू मुकेश, तो महेश में टू मुकेश 1600 और मुकेश में बाय महेश 1600। ओके, राकेश में टू मुकेश, मुकेश में बाय राकेश, महेश में टू मुकेश, मुकेश में बाय महेश। इज दिस क्लियर? होगा क्या? डेड पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा और कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल घटेगा। नेट इफेक्ट वही होने वाला है, नेट इफेक्ट सेम ही होने वाला है जो केस 2 में होता था। सब केसेस का नेट इफेक्ट सेम ही होता है राइट ऑफ होने के बाद। खाली यहाँ पे गुडविल यूज नहीं किया क्योंकि नो गुडविल अकाउंट भी ओपन, ऐसा दिया। बोलो, गुडविल में कोई डाउट? एनीवन? टेल मी। गुडविल समझ में आई कैसे करना है? विदुषी, आर्या गांधी, गेटिंग इट नाउ? जो मुकेश का जिस अमाउंट से गुडविल बढ़ रहा था वो अमाउंट से हम लोग ने राकेश और महेश को राइट ऑफ किया था। बराबर, सेम अमाउंट 4000 रुपीज। शेयर ऑफ गुडविल है ना 4000, तो शेयर मिल गया ऑटोमेटिक, वो शेयर 2400 और 1600 में चला गया। बोलो। तो मतलब जितने से कम होता है बढ़ता है उतने से ही राइट ऑफ करना है ना? हाँ, उतने से 4000 ही मिलेगा, वो पूरा गुडविल ऑटोमेटिकली कट हो जाए, 24 के जगह 4 हो जाए, शेयर ऑफ गुडविल में कन्वर्ट हो। 4000 से रेज होगा अभी, और 2400 और 16, वही 4000 से राइट ऑफ। इज दिस क्लियर? तो सर हम लोग एग्जाम में गुडविल अकाउंट ही नहीं बनेंगे, वो एंट्री नहीं कर चलेगा ना? हाँ, डायरेक्टली कैपिटल में कर सकते हो। ये वर्किंग नोट नहीं बनाया, मतलब गुडविल कैलकुलेशन का बना ना, बट वो नीचे एंट्रीज नहीं लिखोगे तो चलेगा, वो खाली आपके अंडरस्टैंडिंग। दिस पार्ट जो मैंने लिखा ना, ये रेड वाला पार्ट, ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग, ये बनाना जरूरी, ठीक है? देन गुडविल के बाद आ जाओ रिवाल पे। रिवाल में देखो क्या क्या दिया आइटम्स। Assets were revalued as follows: plant and machinery 44,000. तो प्लांट एंड मशीनरी 4000 से बढ़ गए। This has become 44. 44 हो गया तो that's your gain. So buy plant and machine. मोटर ट्रक 18,000 हो गया, 20 का 18 हो गया, मतलब कम हो गया है, तो मोटर ट्रक 20 का 18 हो गया है, रीवैल्यू 2000 से कम। दिस इज 2 मोटर ट्रक 2000। इन्वेस्टमेंट्स 18 का 17 हो, इन्वेस्टमेंट 18,000 था, उसका लेस रीवैल्यू 1000, ये हो गया है 70। That's your loss. What next? All debtors were good. What do you mean by all debtors were good? Many times you have done this. No RDD. No RDD. RDD हट गया तो गेन हो गया बाय RDD, 1000 का गेन हो गया आपका। गुडविल हमने देखा, रिवाल खत्म। रिवाल का प्रॉफिट लॉस ढूंढ लो, कितना है रिवाल का प्रॉफिट लॉस? Profit of 3,000. हो जाएगा 3, आई थिंक
All the All three three partners, Rakesh, Mahesh, Mukesh, 3 to 1, 1500, 1000, 500. रिवाल में 2 कैपिटल, कैपिटल में बाय रिवाल 1500, 1000. तो रिवाल हो गया. First 5 steps are same 5 steps we did in admission, same 5 steps in retirement, same 5 steps in debt. Opening balance, reserves, capital, goodwill, reval. Okay. अब और कुछ बचा है कि हो गया सम? P&L adjustment. P&L एडजस्टमेंट बचा हुआ है. क्या दिया है मुकेश? P&L एडजस्टमेंट तो हो गया. P&L सस्पेंस बाकी. P&L सस्पेंस बाकी है, जो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है वो बाकी है. क्या है उसके बारे में पढ़ो. पॉइंट नंबर 4 पढ़ के बताओ क्या दिया. मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years. Which 2 years? Your 4 and 5. Your 4 and your 5. Working note number 2. Share of profit. शेयर ऑफ प्रॉफिट तो भैया डेथ में होगा ही. नहीं तो ऐसा हो गया कि आप रिटायरमेंट ही कर रहे हो. शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है तो ऐसा होगा ही नहीं कभी कोई सा. शेयर ऑफ प्रॉफिट डेथ में होगा और होगा ही. और वो कितने साल के एवरेज पे बेस्ड है? 2 साल के एवरेज में बेस्ड है, 4 और 5. What are the 2 years? 4 and 5 का प्रॉफिट 12 and 24. What's your total? 36. What's your average? एवरेज क्या आएगा आपका? 36 divided by 2. That's 18,000. तो दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर मिलके क्या, मतलब तीनों तो, तीसरा तो गया, 2 पार्टनर ने मिलकर बोला कि इस साल हम लोग कितना कमाने वाले हैं? अप्रॉक्स 18,000 कमाएंगे. 18,000 में कितना धूम है मुकेश को? बोलो. 1/6 share, so that is 3,000. 3,000 दे दूं? Into 3 by 12. No, now into 3/12 also. Why 3 by 12? What was the date of balance sheet? 31st. 31st. After 3 months. And when did he die? He died on 30th of June. So अप्रैल में जून 3 महीना काम करके गया. तो 3 महीने का शेयर देने का. into 3 by 12 कितना आता है ये? 750. ये भी 750. क्या होगा एंट्री? सेम एंट्री विच वी डिड इन द लास्ट सम. क्या करना है ये? P&L सस्पेंस बाय P&L सस्पेंस 750. एंड सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? P&L सस्पेंस का टेम्पररी एसेट फॉर 9 months. 9 months के एंड में गेट ट्रांसफर टू P&L. ये हो गया आपका P&L सस्पेंस. आई थिंक नाउ द सम इज ओवर. एंड टैली द डेड पार्टनर फर्स्ट. क्लोज डाउन डेड पार्टनर फर्स्ट. व्हाट इज द टोटल ऑफ डेड पार्टनर? 15,250. इधर जाएगा पैसा. कुछ नहीं दिया है तो वेयर डू यू ट्रांसफर इट? ईशा, डेट पार्टनर का पैसा किधर ट्रांसफर करना है? कुछ नहीं दिया है. Executor's loan account. एग्जीक्यूटर या फिर लीगल एयर भी लिख सकते. तो मुकेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. और ये कहाँ दिखेगा आपको ये एग्जीक्यूटर्स लोन? इधर दिखेगा ये मुकेश एग्जीक्यूटर लोन द बैलेंस लाइव देना बाकी 2 का कर लो बैलेंस. बैलेंस टीडी आएगा 31,500, 31,500, 21,000, 21,000, 31 minus 2, 29,100 आ रहा है ये. 29,100 और 19,400 ये जाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट. राकेश कैप एंड महेश कैप. 29,100 and 19,400. टोटल कितना आता है ये? 500. 48,500 आ रहा है. Is that right?
48,500 आ रहा है. हेलो. Bank balance is 14,000. Bank balance is 14,000. As it is, debit minus credit 14,000. Is that right? No change. Goodwill आएगा बैलेंस शीट में, बताओ मुझे. नहीं. नहीं आएगा. बस बाकी सब बंद करो. प्लांट एंड मशीनरी, ट्रक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक, कैपिटल. क्रेडिटर्स नहीं लिखा. राइट डाउन क्रेडिटर्स. बैंक लोन भी बाकी है. बैंक लोन भी लिख दो 20,000. और बिल्स पेएबल भी बाकी है. बिल्स पेएबल भी लिख दो 18,000. Finally, it should tally on 1,09,750. 1,09,000. Check it. क्या था अलग सम में? Was a different element. Account to be made. गुडविल अकाउंट बनाने की जरूरत. Balance sheet. क्या बोल रहे हो? Zoom into the balance sheet, sir. Balance. हेलो. जम रहा है अभी डेथ with extra entries, P&L suspense. Clear है? यही 3-4 चीज का ध्यान रखना है डेथ में. P&L suspense, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. नेक्स्ट सम ले लो. सर 2 मिनट. प्रोपोर्शनल कैपिटल एडजस्टमेंट कौन काम में रहता है? आया तो रिटायरमेंट जैसा ही है लेकिन है नहीं. रिटायरमेंट में कैसा किया? रिटायरमेंट में भी नहीं आता. कौन सा सम मैंने नंबर है? प्रैक्टिस के लिए किया. सम नंबर 8 लेना है. सर कल नहीं आएगा ना? कल आ सकता है. मेरा टेस्ट में आ सकता है. टोटल कैपिटल दिया होगा और आपको न्यू रेशियो में डालना है. फिर सर्कल टोटल कैपिटल दिया होगा, उसको डिवाइड करो न्यू रेशियो. बैलेंस लिखो. बैलेंस बाकी तो सब प्लस और दो पार्टनर का रहेगा ना प्रपोर्शन. रिटायरमेंट सिंपल. मैंने करवाया ना क्लास में और इम्पोर्टेंट में दिया भी है. तुम इम्पोर्टेंट सम में से कुछ भी आ सकता. परफेक्टली 6 सम एटलीस्ट सॉल्व करके करना. आपका आधा रिवीजन तो हो गया इधर रिटायरमेंट का. डेथ में करवा रहा हूँ वो रिवीजन ही है रिटायरमेंट. और जो रिटायरमेंट में सब कुछ डेथ में आ ही रहा है. खाली आपको एक्स्ट्रा एंट्रीज होता है रिटायर डेथ. सम नंबर 8 ले लो और मुझे बताओ, इज इट अ फुल फ्लेजेड सम? सम नंबर 8 और अ पार्ट? Yes, full fledged. फुल फ्लेजेड. ओके. अजय का भी फुल फ्लेजेड. लास्ट सम फॉर द डे. ओके. This is like the 7th sum only. What? 8th sum. What are you saying? 8th sum. We are doing sum number 8. Last sum for the day, full fledged. Wanted to complete, but आज शायद होगा नहीं. Next lecture I'll wind up with there. And I'll start with dissolution. New topic. Keeping my video for some time. My sister has to do something ना तो उसका वो नेटवर्क टूट जाएगा फिर. Draw for the last sum number 8. Sir, in this also we'll have to use cash bank account. हाँ, कैश और बैंक दिया. कैश. बट डेथ में क्या है, अगर
पे ऑफ वगैरह करते हो ना, कोई कैश बैंक का यूज होगा, वरना कुछ खास यूज है ही नहीं। एक ड्राइंग्स के लिए होगा, अभी शायद ड्राइंग्स है। सम नंबर 8, में हाँ ड्राइंग्स में यूज होगा खाली कैश स्लैश बैंक बना देना, कैश और बैंक दोनों है। यहाँ पे टू बैलेंस बीडी में दोनों आ जाएगा, कैश एज वेल एज बैंक। कैश इज 5850 एंड बैंक इज 16,000। Who are the partners? A, B, and C. Then after death, what will be the date of balance sheet? 1st April 2014. 1st April 2014. Very good, perfect. 1st April 14. 1st April 14. ड्रॉ कर लो। $15 minutes before time you reach the center, okay? Offline at test. सर कहाँ पे है? SVDD में होगा और अपना क्लास में होगा, ग्लोबल में। लोकेशन डाल। Means 2 places. We can come in the class. I'll put it. थोड़ा मेरे को आज सेटिंग करना, तो I'll let you know by afternoon. Sir, 35 marks ना admission के जैसा. हाँ, 35. You would be there in the class or in school? I'll be there. इधर भी तुम लोग रहेगा, मैं रहे. Okay. What about the journal? There is a journal of 10 marks. हाँ, मतलब 35 मार्क का टेस्ट है, 3 क्वेश्चन आएगा रिटर्न का, 2 लेजर होगा और 1 जर्नल होगा। वो जर्नल वाले क्वेश्चन में लेजर तुमको रफ में बना और जर्नल फेयर में। Will you provide the paper or we have Answer sheet will be provided, question paper will be provided, just like you used to go to board exam to write exam. खाली स्टेशनरी लेके आना खुद का, उधर मांगने का नहीं, मांगेगा तो निकाल देगा क्लास। इरेजर नहीं लाया, पेंसिल नहीं लाया, पेन नहीं लाया, स्केल नहीं लाया, तो बाहर जाओ, घर पे बैठो, मांगा मांगी नहीं करना, खुद का स्टेशनरी लेके आना। आंसर पेपर, क्वेश्चन पेपर, बोथ विल बी प्रोवाइडेड। 1.5 साल के बाद लिख रहा है ना, भूल गया रहेगा ऑफलाइन। सर, जब कम आए तो चलना देना, थोड़ा कम आए। Sir, the first offline. पढ़ाई करके आना, भांडा फूटेगा। जो लोग ऑनलाइन में छाप रहा था, सबका भांडा फूटने वाला है। सर, रफ पेपर सब वो उधर ही रफ वर्किंग करने का है, आंसर शीट में ही लास्ट साइड पर रफ वर्किंग। सर कैन वी 1.5 घंटा कम नहीं है? नहीं, कुछ कम नहीं। क्या बोल रहे हैं? मार्जिन्स यूज कर सकते हैं? यस, यू कैन यूज मार्जिन। पेपर 10 मिनट जल्दी मिलेगा? नहीं, एग्जैक्ट टाइम पे मिलेगा और 1.5 घंटे में ले लिया। अरे सर, बोर्ड वाले भी टाइम देते हैं प्रिपेयर करने सर। बोर्ड पेपर 3 घंटे फॉर्मेट का बना के रखते, उधर नया फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। 15 मिनट का एक्स्ट्रा दे दो। बोर्ड पेपर 3 घंटे का होता है, होता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला। सच्ची में बहुत कम टाइम देते हो। प्रैक्टिस और करो। सर पेपर भी कितना हार्ड सेट करते हो सर सर। ऐसे 10 मिनट तो इंग्लिश समझने में लगता है। पेपर समझने में आधा घंटा लगता है हम लोग को।
6 सम इसलिए बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सम देखो, थोड़ा खुद को प्रैक्टिस करवाओ, हाथ चलाओ, लिख के प्रैक्टिस करो तो होएगा। सर पहली ऑफलाइन टेस्ट नंबर डिफिकल्ट होता है, कैलकुलेशन थोड़ा अरे टाइम सर प्रैक्टिस करना बोलना इजी है, करना हार्ड है ना। करना क्या हार्ड है, थोड़ा बैठना कर भी तुमको लिया ना आलस है, वो प्रैक्टिस, बोलो, तो भी लिखने में आलस तो भगाओ। टाइम लगेगा ना। क्या आपको कैंसिलेशन भी नहीं चाहिए, तो नीटनेस में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ना प्लीज। तो 20 मिनट बोर्ड का टाइम है, मैं थोड़ी 20 मिनट में 3, जर्नल में 30 मिनट है, तो 20 20 और 30 कितना होता है, 40 मिनट्स प्लस 30 में 1 आवर 10 मिनट्स होता है। 5 मिनट लगता है ऑब्जेक्टिव लिखने को, 1 आवर 15 मिनट्स में हो जाना ऐसा तो चाहिए। assumed आई है। गिविंग यू 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, 1 आवर 30 मिनट्स। सर ऑब्जेक्टिव भी है तो करिए। सर आंसर शीट थोड़ा पहले दे दो ना, सर आंसर शीट पहले दे दो। 15 मिनट एक्स्ट्रा है ना, उसके लिए ही जो राइट एंड प्रैक्टिस 6 सम इसके लिए बोल रहा हूँ। तुम लोग सेल्फ प्रैक्टिस से है अपना स्पीड बढ़ाएगा नहीं ना, तो तुम लोग हमेशा वो दूसरा का भरोसे पे ही रहेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा, 10 मिनट एक्स्ट्रा, 15 मिनट एक्स्ट्रा। तुम प्रैक्टिस किया रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली विल हैव कॉन्फिडेंस कि नहीं सर 1.5 घंटे का पेपर में 1.25 घंटे में कर लेगा, 1 घंटे में कर लेगा। प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आने वाला। तुमने प्रैक्टिस नहीं किया, इसके लिए यू आर फीलिंग लाइक दिस, गिव अस एक्स्ट्रा टाइम। सर रीडिंग टाइम तो मॉलिश है ना? नो रीडिंग टाइम, बोर्ड में भी नहीं मिलता है रीडिंग टाइम। बोर्ड में खाली 3 घंटे का पेपर है, 15 मिनट पहले आंसर शीट मिलेगा। 3 घंटे का पेपर में 80 मार्क्स में 15 मिनट मिलता है। 5 मिनट सर, 5 मिनट दे दो। So then you will give 5 मिनट पहले दे देगा, बट कम ऑन टाइम एंड सिट। ओके, कम टू सम नंबर 8, स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट सम। ये सम आ गया तो लाइव जिंगा लाला। ओके, एक सिमिलर सम हमने किया था, सब रेपिटेटिव है सम में, खाली फॉर प्रैक्टिस या सॉल्विंग अगेन। सम नंबर 8, tell me the first step, you only tell me now everything, come on in this sum. First step is what? Opening balance, कैश का लिखा। व्हाट इज द सेकंड, और किसका लिखना है बैलेंस, बोलो मैं। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल बाय बैलेंस पीडी is 22,750, 15,250, 12,000. Okay, now tell me the next step. रिजर्व्स, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको करना है? बाय जनरल रिजर्व। किसको करना है? ऑल द 3 पार्टनर्स, करेक्ट, दिया नहीं है। 7:5:4 इज ओल्ड रेशियो, तो करो डिवाइड 16,000 इन 7:5:4, कितना आता है? और बोर्ड में ऐसा रेशियो आता है? ये बहुत सिंपल है, 754, 7 + 5 12 + 4 16, स्ट्रेट है, स्ट्रेट। 754 16 ही होता है ना टोटल, 7,000 5,000 4,000। वैसा अतरंगी आया तो भी वो डिवीजन इजी हो जाएगा, राउंडेड ऑफ फिगर है। ऑड फिगर्स बहुत रेयरली आए। देन कैपिटल कोई ला रहा है, एनी पार्टनर इज गेटिंग कैपिटल, चेक 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 चेक, कुछ नहीं है। व्हाट इज द फोर्थ स्टेप आफ्टर कैपिटल? गुडविल। Check and tell me which case of goodwill do you have? थर्ड केस। Which case of goodwill do you have? 1 2 3 4, check. थर्ड केस। All of you got that? Third case? सबको समझ आ रहा है थर्ड केस? ये सब कुछ करने वाले हो कल आप रिटायरमेंट में, कोई रिपीटेशन हो रहा है। थर्ड केस है, दिख रहा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 times the average profits of last 5 years. Come on, calculate goodwill. All of you make a working note for goodwill. ढूंढो सब लोग गुडविल। सर अगर पूरा सब रिटायरमेंट का सब लेक्चर्स वापस देखना है तो इन टोटल कितने लेक्चर्स थे? इन टोटल 6 लेक्चर्स होंगे। सब क्यों देखना है, इतना सब तो किया रिवाइज। डेथ में रिटायरमेंट तो हो रहा है तुम्हारा, सब वापस क्या करना है, समझ देखो। 2x स्पीड पे देख लेंगे। ठीक
ठीक है, देखने का तो देखो, वही रिपीटेशन। सर आपका लेक्चर इतने देखे नहीं, 3-4 दिन में सजेशन में आने लगे। चलो गुडविल कैलकुलेट करो फटाफट, कितना आता है ये, योर्स एंड प्रॉफिट। एवरेज गुडविल 13,000 आता है। And Sir, last point where it is given that give working note for share of goodwill. give working note for profit and share of goodwill of deceased partner। नहीं मतलब वो सेम ही है, शेयर ऑफ गुडविल मतलब शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डिसीज पार्टनर, मतलब वो डिसीज पार्टनर को शेयर जाएगा ना। सर गुडविल शेयर ऑफ गुडविल रेज नहीं दिया है ना, शेयर ऑफ गुडविल रेज दिया है तो फिर यू मेक इट एज केस। है केस 3 है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड at 3 times the average profits of last 5 years। खाली वर्किंग नोट दिखाना है, वो डेड पार्टनर को उसका शेयर देंगे ना, वही दिखाना। It's 63,000. टोटल में भी उसको शेयर मिल रहा है। Average. टोटल कितना आया? Total is 1,05,000. 1,05,000। 1,05,000. Average is 21. 1 second। 1,05,000 the total and average profit 21,000. 1,05,000 divided by 5, that's 21,000। ठीक है, और गुडविल कितना आएगा टोटल गुडविल? 3 times, so 63. सर पर ये सब में गुडविल अकाउंट बनाने का नहीं बोला तो हम लास्ट सम की तरह ही करने वाले हैं ना इधर भी। कहाँ बोला है गुडविल अकाउंट? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। वो तो हर एक सम में ऐसा ही देता है, कोई भी सम में स्पेसिफाई करके नहीं बोलता है गुडविल और कैश। गुडविल और कैश वर्किंग नोट है, हर एक सम में बनाने का ही, कभी नहीं बनाने का। जब स्पेसिफाई करके दिया होगा नो गुडविल अकाउंट भी ओपन, तभी मत बना। ऐसा तो तुम कोई भी सम उठा के देखो, नीचे कभी दिया ही नहीं रहे, बैलेंस शीट दिखा तो बना ही देने का। नो गुडविल अकाउंट भी ओपन स्पेसिफाई करके दिया तभी मत बना। टोटल गुडविल इज 63,000। हाउ मेनी एंट्रीज? केस 1 1। व्हाट इज दैट 1 एंट्री इन केस 1? सर केस 3 है ना? Sorry, case 3, sorry। What is that 1 entry in case 3? Goodwill to old partner capital. Goodwill to old partner capital. Who are the old partners? A, B, and C. Goodwill to A cap, goodwill to B cap, goodwill to C cap. Okay, that would be 754. 63,000 in the ratio of 754 divided by 16। ये पॉइंट में आएगा शायद। Divided by 16 27,563 पॉइंट में आ रहा है। 27,563 फिर 19,687 ओके और 15,750। 27,563, 19,687, 15,750। गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर में आएगा बाय गुडविल। ये ऐसा खतरनाक चीज बोर्ड में नहीं आएगा प्रियांश टेडिया। 27,563, 19,687 and 15,750। ओके, राउंडेड ऑफ फिगर्स आएगा, आया तो 7:5:4 में डिवाइड नहीं आएगा ना ऐसा? कल आ सकता है, मेरा पेपर में एडमिशन में भी आया था डेसिमल में आंसर, बोर्ड में मैं बोल। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर में बाय गुडविल। इज दिस क्लियर? व्हाट नेक्स्ट नाउ? आफ्टर गुडविल एक ही एंट्री था, थर्ड केस रेस किया, खत्म, ऑटोमेटिकली डेड को उसका शेयर मिल गया। अब क्या आफ्टर गुडविल क्या करना है बोलो? रिवैल का कुछ दिया है क्या? पढ़ो जरा सबने, मेरे को तो दिख नहीं रहा है। दिखा, चलो कौन सा पॉइंट में दिया है रिवैल्यूएशन? पढ़ो जरा सब लोग। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है। फर्नीचर
मशीन बिल्डिंग 1805,000, फर्नीचर कितना था 2100 का लेस रीवैल्यू थिंग्स, ये हो गया 1800। और इधर आएगा टू फर्नीचर। मशीनरी रिवैल्यूड एट 5,000, तो ये मशीनरी था आपका 6,800 का हो गया है लेस रिवैल्यूड 1800 से कम, ये 5,000। इधर आ जाएगा टू मशीन एंड देन यू गॉट बिल्डिंग 44,700, बिल्डिंग 30,600 था, उसका प्लस रिवैल 44,700, तो कितने से बड़ा होगा ये 14,100 14,100 से बढ़ गया। इधर आ जाएगी बाय बिल्डिंग 14। बस आई थिंक 3 ही आइटम था रिवैल का। बंद करो, प्रॉफिट ढूंढो, कितना आ रहा है 12,000। 12,000 डॉट, हाँ, और 5,250, 3,750 और 3,000। ये तीनों को जाएगा ए कैप, बी कैप, सी कैप, और इधर आ जाएगा बाय रिवैल 5,250, 3,750। Okay, 5 steps clear: opening balance, reserves, capital, goodwill, reval. What next? Extra entries. Now check in the problem, you got what extra entries? Check. Interest on capital and drawings. पहले सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। पॉइंट नंबर 1 में गुडविल दिया है, डन विद दैट। पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया है? पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। पॉइंट नंबर 2, these share of profits up to date of death are to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. What are they talking about this? किसका बारे में बात, किसका बारे में बात कर रहा है ये? बोलो। Share of profit. Share of profit. Share of profit is based on which 2 years average? Last 2 years. Last 2 years. Which are the last 2 years? 2012, 2013. Very good. 2012, 2013. कितनी येतात profit of last 2 years? 17,000 and 12,000. What is the total? 29. 29,000. Is that right? What is your average? I think that's 14,500. Is that correct? 14,500 is your average. Gargi, Megha, Nishant, Yashraj, Veer, is that correct? 14,500 is what you are going to earn this year. What about that? Should I give the entire share to the dead partner in the loving memory of Mr. C? दे दूं पूरा का पूरा पैसा? कितना दूं? 14,500 into 4/16 divided by 3. 14,500 into उसका शेयर कितना है पहले? 4/16 4/16 और कितने महीने का दूं? 3 months. 3 months. Why 3 months? All of you understood why 3 months? Date of बैलेंस शीट से लेके डेट ऑफ डेथ 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बनाया था और कभी गया 1 अप्रैल 14, 3 महीना काम किया, उसके बाद गया जनवरी, फरवरी, मार्च। करो डिवाइड 4/16 और 3/12 कितना आता है? पॉइंट में आ रहा है 06.25 राउंड ऑफ। हाँ 906.25. 906. What is the entry for this 906 share of profit? By P&L suspense 906. सी के कॉलम में 906 और दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट में. Should I write directly 906 in the outer column?
No. There are some other items also that the business is supposed to give. Share of profit तो दे ही रहा है, उसके ऊपर भी कुछ और दे रहा है. देखो, share of profit तो हुआ, फिर point number 3 में रिवाल. Point number 4 पढ़ो. Point number 4. Point number 4. क्या मिल रहा है और? By salary to partner. Salary to partner. तो इधर ही आएगा by salary to partner. By salary to partner. कितना salary देना है? 1250. 750 a month. कितने महीने की सैलरी दोगे? 750 a month है तो 3 months. 3 महीने की सैलरी 750 into 3 कितना होता है? 2250. बराबर है. 2250 की सैलरी भी देंगे. क्या करोगे? ये 2250 का सेकेंड इफेक्ट याद आ रहा है? कुछ बताया था मैं. Add to P&L suspense the asset. जो उसको देना है वो P&L सस्पेंस में ऐड करो. सर क्यों ऐसा किया? नॉर्मली किधर डालते हो? P&L डेबिट में. P&L डेबिट है नहीं, P&L सस्पेंस में डाल दो. ईयर एंड पे P&L डेबिट में ही जाने वाला है. P&L सस्पेंस इज गोइंग टू गो टू P&L डेबिट. गेट नलिफाइड. समझा? तो टेम्पररीली 9 महीने तक जो भी देना है वो P&L सस्पेंस में डाल दो डेबिट पे 225. और भी कुछ देना है. देखो और क्या देना है? Interest on capital. तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी इधर ही आएगा. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने टाइम का देना? 3 months. वो भी 3 months का देना है. व्हाट इज हिज कैपिटल? 12,000. 12,000 पे कितना टका है? 10% है फॉर 3 months. 12,000 पे 10% फॉर 3 months. Why not 12 months? Did you understand? Why not 12 months? Because he died within 3 months. His capital is there in the business for only 3 months. तो 3 महीने की सैलरी, 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसका भी दूसरा इफेक्ट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकंड इफेक्ट क्या करो? Add to P&L suspense. ये भी ऐड टू P&L सस्पेंस. ये भी देना है. अच्छा, इधर भी खत्म नहीं हुआ. सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और क्या दिया आगे पढ़ो. पॉइंट नंबर 6. These drawings up to the date of death were 624 a month. क्या होता है एंट्री फॉर ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स टू कैश बैंक. ड्रॉइंग टू कैश बैंक. तो कैश बैंक में क्या लिखना है यहाँ पे? By drawing. बाय ड्रॉइंग्स. कितना आएगा बाय ड्रॉइंग्स? 1872. 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 12 से 624 into 12. Why 3? Because क्योंकि partner उसको was जो alive. 12 महीने का शेयर था वो सब दे चुके हैं हम वो last सब दे year. चुके हैं बैलेंस शीट तक. उसके बाद खाली 3 महीना काम किया, जनवरी फरवरी मार्च. 3 ही महीने का. सब कुछ 3 महीने का दे रहा हूं मैं, सब कुछ. शेयर ऑफ प्रॉफिट 3 महीना. सैलरी टू पार्टनर 3 महीना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 महीना. ड्रॉइंग्स 3 महीना. सब कुछ 3 महीना. खाली एक चीज में मैंने मंथ्स कैलकुलेट नहीं किया है. एक चीज में मैंने मंथ्स कैलकुलेट नहीं किया. व्हाट इज दैट? Goodwill. गुडविल. याद है ये? नो मंथ्स. गुडविल में कभी मंथ्स नहीं होता है. गुडविल हैज नो इफेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ, बिकॉज आने वाले सालों के प्रॉफिट दे रहे हो. 3 साल का शेयर दे रहे हो पूरा का काम का. अच्छा, ये ड्राइंग्स का एक इफेक्ट हुआ. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ ड्राइंग? किधर जाता है ड्राइंग्स? Add to P&L suspense. ये बापा कैपिटल टू Subtract. ड्रॉइंग. कैपिटल कम होता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, लेस होएगा P&L. ओके, ये एक्सपेंस नहीं है भाई, घर पे ले गए. Sir, Two drawings. interest on drawings अगर a percentage दिया है, so we should take 6 months का 3 months. हाँ, तो 3 months का 1.5, बट वो है नहीं. डेट उधर है, सीए में है. यहाँ पर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आया तो अमाउंट दे दे. विल गिव यू द परसेंटेज कैलकुलेशंस. अगर आएगा परसेंट, मतलब इधर नहीं आता. अगर नॉर्मली जैसे करते हो तो फाइनल अकाउंट में क्या करते हो? 6 months करते हो ना. दैट इज व्हाट 12 months into half. इधर 3 months का into half, एवरेज आउट. ओके, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द. गॉट इट? 1.5, 3 का 1.5, 4 का 2, 5 का 2.5, 6 का 3 months. ऐसा
2 drawings करो, 2 drawings. Whose column? Is column 187. और कुछ बचा है सब में? सब सबसे पहला बंद करो डेड पार्टनर को और बताओ क्या आ रहा है डिफरेंस. Differences of 36334. इधर डालूं ये डिफरेंस. Liability. क्या लिखोगे? सीज एग्जीक्यूटर्स लोन. बराबर है. ये जाएगा लाइन. टोटल कितना है सी का टोटल? 38. What is the total of C? 38206. 206. Yes, A is 62,563 and B is 43,687. 8625. No, A is 62563. 62563. Yes. And B is 43687. 43687. Difference करो to balance CD. 6 Sir, to A 5. के लिए I got 55563. B का बराबर है 43687. 62563 is right. Yeah. And 43687. Check. This is 62563. 43,687. What is the total? 106250. 106250. That is the total. And Sampla, I think balance कर लो ये by balance CD कितना आ रहा है? कैश में 19978. इधर क्या लिखने का? कैश एंड बैंक. साथ में लिखने का कैश एंड बैंक 19978. और पीएनएल सस्पेंस कितना होगा अभी? 906 प्लस 2250 प्लस 300. सब कुछ देना है. टोटल कितना होता है पीएनएल सस्पेंस का? हाँ 3456. 3456. 3456. और गुडविल आएगा बैलेंस शीट में. गुडविल Yes. क्यों आएगा भैया? किस खुशी में? Case 3 है ना? केस 3 है ना, तो आएगा 63,000. 63,000 गुडविल जाएगा आपका बैलेंस शीट में. 63,000. और क्या बाकी है लिखना? कैश लिखा, बैंक लिखा, बीआर नहीं लिखा है तो इधर मैं बीआर लिख ले रहा हूँ बीच में. बिल्स रिसीवेबल आर 950. और क्या है? डेटर्स लिखा, स्टॉक लिखा. डेटर्स नहीं लिखा ना. डेटर्स are 16,250. Then stock लिखा. Stock is 2,100. फर्नीचर लिखा, मशीन लिखा, बिल्डिंग लिखा. 9,450. स्टॉक इज 945. बीपी कितना है? बीपी 2350. क्रेडिटर्स कितना है? क्रेडिटर्स 5250. Gen loan is 14,200. General reserve bond should tally. 1,64,584. दोनों साइड चेक किया बराबर? सर एसेट साइड चेक कर रहा हूँ. दोनों चेक करो.
Yes, sir. 164584. Both the sides 164584 asset side you check. Gargi. Yes, sir. Calculate all of you. Sir, I checked asset side, it's same. 164584. Just check. 164584. 164584. All right. So that's it. All for the day. We stop at this point. Okay. Nothing for homework in day. Practice retirement properly. Offline test tomorrow. Come for practice today evening 7:30 at class. Okay. And solve. घर पे कर रहे हो तो 6 sums at least. Write and solve. और जर्नल के लिए 30 मिनट है और लेजर के लिए 20 मिनट. वही टाइम के अंदर होना चाहिए मैनुअल कैलकुलेशंस के साथ. ओके. छापम छापी कुछ नहीं होने वाला है. डाउट्स है तो रुको. आई पुट द स्लॉट्स इन द ग्रुप. अपना स्लॉट चूज कर लेना. 2 o'clock 3:30 जो भी है. डाउट्स है तो रुको. अदरवाइज Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.